फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ग़ुलाम मोहम्मदाबाद में मौजूद हैं। मेरे अकब में फैक्ट्रियों पर लगे नोटिस इस चीज़ के गमाज़ हैं कि फैक्ट्री मालिकान और मज़दूरों को झगड़े अरूज और इस वक्त तवील पकड़ने लगे हैं, तोल पकड़ने लगे हैं और हर कोई इस वक्त एहतजाज की राह इख्तियार कर रहा है। मालकान के ख़िलाफ़ नोटिस लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि वो फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं मज़दूरों को नोटिस दिए बगैर, जबकि मज़दूर इस चीज़ पर सरापा एहतजाज हैं कि उनको मजदूरी नहीं मिल रही और कई रोज़ गुजर गए हैं, वो मजदूरी के मुतलाशी हैं। इस सेक्टर में यहाँ खड़े कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, लेकिन आज यहाँ आवाज़ भी सुनाई देती है। बासानी हल्की आवाज़ में बोली बात भी आप तक पहुँच रही है, वरना यहाँ मुझे ज़ोर लगा के माइक के ऊपर बोलना पड़ता था इस मज़दूर से बात करने के लिए। मज़दूर के हालात इस हद तक ज़ुबू हाल हुए हैं कि मज़दूर आज बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहा है और पिसता चला जा रहा है। मज़दूर मौजूद हैं, इनसे इनका अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रूमों में काम करते हैं? कब से कर रहे हैं? 32 साल हो गए। 32 साल। और अभी चल रही है मजदूरी? बंद है। कितने दिन हो गए? 6 महीने हो गए। 6 महीने से कोई मजदूरी मिली? कोई नहीं। कितने दिन लगते हैं वैसे महीने में? अब तो लगते ही नहीं है। लगते ही नहीं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। तो कमाता है कोई? 2 बेटे कम कर दे। काम करते हैं तो कैसे गुजारा कर रहे हैं इसे? बस रोटी पक जाती है, एक दिन खा लेते हैं, एक दिन। वजह क्या है, क्यों बंद हो रही है फैक्ट्री? जब मालिकों को पैसा मिलता है वो चला लेते हैं, जब नहीं मिलता वो बंद कर देते हैं। यानी कि पहले मजदूर मालिकों के खिलाफ एहतजाज करते थे, अब वो समझ रहे हैं कि मालिका भी हमारे जैसे मजदूर बन गए। हाँ जी, हालात वाक़ तो बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ज़ीरो हो गए। उम्मीद है कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी वो चक्कर लगाते हैं कि दिहाड़ी लग जाती है। जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ। घूमने काम करते हैं? हाँ जी। कितनी देर होगी जाना? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 20 ਕੁ ਸਾਲ। 20 साल। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ? ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਲੂਮਾ ਮਸਲ ਕਿ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ ਹਫਤੇ 'ਚੋਂ ਤੇ 6 ਲੂਮਾ ਬੀਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾਲਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੂਮਾਂ ਬੰਦ? ਲੂਮਾ 48 ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ? ਉਹ ਜੀ 2-3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬੰਦ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਗ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਵਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਤੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ? ਮੈਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਬੀਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਲੂਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ 8 ਲੂਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ, ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਲੂਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, 7000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਰੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਆਈ ਯਾਰ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੂਮਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਭਰਾਉਣ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ। ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤੇ ਬਲਬ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ 5000 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 7000 ਰੁਪਇਆ ਰੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਘਰ ਦਾ? ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਕਮਾ ਕੀੜੇ 6 ਲੂਮਾ 5 ਲੂਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। 10000 ਜਾਂ 5000 15000 ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਲਕ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਮਰਾਦਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਿਹਤਰ? ਭਾਜੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤਰਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਇਹ ਸਗੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ, ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ये मालिक है? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਆ। ਅਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਦੀ 1-5 ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸਾਂ मैं ਪਾਉਂਦੇ। उनसे बात करता हूँ, आप यहीं रुकेगा। आप सारे यहीं रुके, आप सारे यहीं रुके, आपने आगे नहीं आना किसी ने। मैं उनके पास खुद जाऊँगा, आप सारे यहाँ रुके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात तो सुने। कौन दहशतगर्दी कर रहा है? बात तो सुने। और मैं उनको वहाँ रोक रहा हूँ, मुझसे तो बात कर रहे हैं।
ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਲੂਮ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ मौक़िफ़ दो। मैं करीमी साहब से बेटा हूँ, किन्ने दा? इकबाल करीमी साहब प्रेस फोटोग्राफर। तो मैं उनका क्या करूँ, अस्सलामुअलैकुम। क्या करूँ? मुझे मुझे आप किसी की धमकी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपना मौक़िफ़ मैं दें। गल ही नहीं करना चाहता। क्यों? ऐसा बदमाशी करते आप कर रहे हैं बदमाशी, तो मैं नहीं की। आपने धमकियाँ लगा रहे हैं। मैं नहीं एक मिनट, आप चुप कर दें, आप चुप कर दें। आप धमकियाँ लगा रहे हैं उन्हें। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। चलें ये देखें, मैंने तो मैं मालकान के लिए हमेशा से बात करता हूँ, क्योंकि जो मालिक बात करना चाहेगा वो 100 बार बात करे। इन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद की है, लेकिन ये ज़्यादती होगी कि आप मज़दूरों के साथ बदमाशी भी करें और उनको धमकाएं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और वो जी फ़ोन करके कह रहे हैं दहशतगर्दी हो रही है। मैंने तो वैसे इनके किसी हाथ में कोई गन या कोई चीज़ नहीं नज़र आई, लेकिन चले उनका मौक़िफ़ अपनी जगह। वो मुझे किसी सहाफ़ी का रेफरेंस दे रहे थे कि मैं किसी सहाफ़ी का बेटा हूँ। आप बेशक किसी सहाफ़ी के बेटे हों, मैं सहाफ़ी हूँ, तो मेरे पास ये इख्तियार नहीं है मैं किसी को गालम गलोच करूँ, धक्कम पेल करूँ, गाली दूँ या उसको डराऊँ धमकाऊँ। अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ तो वो कारोबार है, वो सहाफ़त नहीं है। सहाफ़ी मैं ये हूँ जो मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ। इसके पीछे जो मेरा कारोबार होगा वो मेरा ज़ाती मसला है, उसको सहाफ़त की आड़ में हम किसी तौर पे भी कवर नहीं कर सकते। अगर आप मज़दूरों का जो इस्तेकाक मजरू कर रहे हैं तो उसका आपको जवाब देना होगा और आप जवाब देंगे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि अगर वो अपने मौक़िफ़ पे कोई उनके अंदर है कि उनको लगता है ये गलत कर रहे हैं, तो वो अपना मौक़िफ़ मेरे प्रोग्राम में कैमरे के सामने रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस मामले में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इजहार नाराज़गी का इजहार किया कि मैं नहीं देना चाहता, लेकिन मज़दूर हैं। इनसे अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं मुरादाबाद का कहाँ नौकरी करते हैं? यहीं करते हैं। किस फैक्ट्री में? मैं नहीं, गली में जो फैक्ट्री है उसमें। यही मालक है। हाँ जी, यही मालिक थे? हाँ जी। क्या इनके साथ मसला क्या है? देखिए सर, 1 महीने से हमारी फैक्ट्री बंद है। हमने इनसे गुजारिश की कि हमारे लिए कुछ खर्चा पानी का इंतज़ाम करें, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं। 1 महीने से इन्होंने बिल्कुल हमारे साथ ताउन नहीं किया, बंद कर दी फैक्ट्री? बंद कर दी फैक्ट्री। 2 दिन का कहा इन्होंने कि बाना आ जाएगा फिर आपकी लुमे यानी कि चला देंगे, यानी कि बाद में इसने हमारी कोई बात नहीं सुनी, ना हमें कोई ताउन किया है हमारे साथ। हमारे 1 महीने से चूल्हे बंद पड़े हैं घर में। अब आप ये बताएं हम कहाँ जाएं? हम इनसे खर्चे के तौन किए तो ये हमें दहशतगर्द करार करते हैं। जैसे मैंने कैमरे पे हसन को दिखाया है, यहाँ किसी के हाथ में ना तो कोई डंडा है, ना कोई पिस्तल है, ना कोई बंदूक पकड़ी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ। जी। वो देख लीजिए, वो कह रहे हैं हम हाथ खड़े करके दिखा देते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त, कि जो उन्होंने कहा दहशतगर्दी हो रही है फ़ोन पे। अब वो किसको कहा है वो आगे दहशतगर्दी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कैमरे पर रिकॉर्ड कर लिया। चलें, मैं ये नोटिस से शुरू किया। मैंने इस नोटिस की सपोर्ट में प्रोग्राम किया था कि यहाँ मालकान भी तंग हैं कि उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उन्हें नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, मजदूर तंग है, उसकी मजदूरी नहीं मिल रही। यहाँ लिखा हुआ है कंप्लेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वर्कर्स एंड क्लोजर ऑफ फैक्ट्री विदाउट इंटीमेशन, कि ये वर्कर्स हैं शदाद अंजम, अज़हर अब्बास, मोहम्मद अशरफ, तारिक अली, मसूद अहमद, इमरान अली, और ये सारे नाम लिखे हैं कि उन्होंने इस फैक्ट्री के अंदर से शिकायत की है लेबर डिपार्टमेंट को कि वो यहाँ जो 25/9 एट शार्प सो दैट कंप्लेंट शुड बी रिजॉल्व एट द अर्लीस्ट, अदरवाइज वो फैक्ट्री को सील कर देंगे। जो भी करेंगे उनका कानूनी इख्तियार है, लेकिन यहाँ मज़दूर जमा हैं और मज़दूर अपने हक़ के लिए इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं पूरे चौक। और यहाँ होने वाला जो ख़ास तौर पर उन्होंने जो रवैया था, मेरे ख्याल में इख्तियार न करते, बड़े पूरा मुझे मौक़िफ़ देने आए थे लोग, लेकिन वो थोड़े से ताइश में आगे के मालिक आगे से धमकियाँ भी लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कितनी लोग काम करते लोगों पे? मैंने 22 साल हो गए। 22 साल हो गए काम करते। तो अभी कितने दिन से बेरोज़गार हो? 1 महीना हो गया। तो इन नौकरी मिली? कहाँ करते थे? इसे फैक्ट्री इन्हों की मालकां की लग इन्हें कितनियां लूमा टोटल इन्होंने? तकरीबन है 250 इन्हें बंद क्यों की इन्होंने? बाने की दुखों कहते जी सानू बिल बहुत आंदा, उन्हें असी सानू अं जाइए किधर नूं, साडे थोड़े बच्चे को पैसे भुखे शार्ट बैठे। भी है इधर? हाँ जी, किन्ने? कोई भी नहीं पैसे कितों नहीं इन्हें देने वाले थोड़े कोई या नहीं, क्लियर है? नहीं ऐसी क्लीयर है, खर्चा नहीं देंगे भी सानू। 1 महीने तो काम बंद आ, बच्चे भुखे बैठे, ते वो भी ससुराल घल्ले होए आ भी यार न्याणे तो मंगते आ कि नहीं, बच्चे मंगते आ, लेकिन असी किधर नूं जाइए, किनू असीं कहिए? इन्हों आण के कही ये गल नहीं सुनते साडी, अगों गाला कढ़ते सानू, बदतमीजी करते साडे नाल। आगे से वो कह रहे हैं मुझे बदतमीजी करते हैं हम जब इनसे मुतालबा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले बात हुई आपसे? हाँ जी। अच्छा, आपसे पहले बात होगी। ये मुतालबात अपने जो है सामने रख भी रहे हैं। ये फैक्ट्री है और ये एक फैक्ट्री नहीं है, ये सारा गुलामाबाद सेक्टर है जो कि मैं एतराफ़ में। अब इसके बाद मालकान की तरफ बढ़ूँगा। वहीद खालिक रामे साहब से कोशिश करेंगे बात करने की कि मालकान का मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि वो मेन स्टेक होल्डर हैं।
अगर कहीं भी किसी तौर उनकी नाराज़गी है वो मेरे प्रोग्राम में अपना इजहार कर सकते हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि वो हमेशा से अपना मौक़िफ़ मेरे प्रोग्राम के ज़रिए लेके आते हैं कि उनकी जो भी नाराज़गी, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसे हम सुनते भी हैं, सहते भी हैं और आप तक पहुंचाते भी हैं। हमारा मकसद इंतज़ामिया तक ये पहुंचाना है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, और किसी के साथ अगर कुछ हो रहा है तो उसका अजाला बिल्कुल जायज़ तरीके से होना चाहिए। मज़दूर और ये सारा बेसिकली जो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया, मैं उन्हें भी कसूरवार नहीं कहता, ना इनको कहता हूँ, क्योंकि ये इंतज़ामी नाअहली है कि इंतज़ामिया कहाँ मौजूद है कि इतना बड़ा सेक्टर जो है वो ज़ुबू हाली का शिकार है और बिजली के बिल इजाफी आ रहे हैं, ज़ायद यूनिट डाले जा रहे हैं, मज़दूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही, मालकान बिल देने से परेशान है, मज़दूर अपना घर चलाने से परेशान है। लेकिन हुकूमत है तो मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार इनको छोड़ा हुआ है जो टस से मस नहीं हो रही, जिनको सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। लेबर डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले हम पावरलूम का सेक्टर का विज़िट किया और आपको दिखाया कि हालात वाक़ियत के हैं। इस शहर फैसलाबाद को मानचेस्टर बनाने वाली और टेक्सटाइल का शहर बनाने वाली यही पावरलूम इंडस्ट्री है। यही मज़दूर हैं जो इस शहर फैसलाबाद की रौनक और इस फैसलाबाद की पहचान हुआ करती थी। लेकिन आज हर तरफ ये सुनने को मिल रहा है कि पावरलूम्स का कब्रस्तान बन चुका है, पावरलूम इंडस्ट्री उजड़ चुकी है, मज़दूर बेरोज़गार है, एक तूफ़ान बरपा है, सड़कों पर जराइम की शरह के अंदर होशरबा इजाफा देखने को मिल रहा है। एक अफलास है और एक मौशी मुश्किलात हैं जो कि हर एक को घिरे में हैं। मालकान ये कहते हुए फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं कि ग्रे क्लॉथ की सेल आगे नहीं है, जबकि पीछे बिजली मज़ीद महंगी हो चुकी है जिसके असरात जो हमारे ऊपर मुरतब हो रहे हैं। जबकि लोग जितने भी लोग हैं ये इंसाफ की मुतलाशी के लिए लेबर डिपार्टमेंट का रुख करते हैं, अपनी शिकायत और जो कुछ है वो दर्ज करवाते हैं, लेकिन कोई भी दाद रसी जो है वो सिफ़र के बराबर है, क्योंकि सिफ़र से भी 1 पॉइंट ऊपर भी नहीं मिल रहा और सिर्फ यहाँ दरख्वास्तें वसूल हो रही हैं। उसके मुतबादिल लेबर डिपार्टमेंट जो है वो कुछ भी करने से कासर नज़र आ रहा है। हमारे साथ मजदूर मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद बाबा लतीफ़ मौजूद हैं। ज़रा आगे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? शाहद अली जी। कितनी देर हो गई लूमा काम करते हो? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਤੇ? ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ। ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਆ ਚੱਲ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 24 ਲੂਮਾਂ ਨੇ। ਲੂਮਾਂ 108 ਆ ਉਹਦੀਆਂ, 24 ਲੂਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। 24 ਚੋਂ 8-12 ਲੂਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 12 ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, 12 ਦੇ ਬੀਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 12 ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। 8-10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੀਮ 24 ਦੇ 24 ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਖੜੀਆਂ ਲੂਮਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ? ਮਾਲਕ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੇਟ ਘਟਾ ਲਓ, 100 ਰੁਪਿਆ 200 ਘਟਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੀ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਬੀਮ ਛਾੜ ਆ, ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ 12 ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ। ਇੱਕ 15-15 ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ, 18-19 ਦਿਨ ਬੀਮ ਕੱਢਦਾ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੂਮਾਂ, ਫਿਰ 12 ਬੀਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਇਦਾਂ ਨਿਯਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਲਿਆ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ। अस्सलाम वालेकुम, आप अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर होगी फैक्ट्री पे काम करते? मुझे काम करते हुए तकरीबन 6 माह हो चुके हैं पावरलूम पे काम करते? पावरलूम पे, इस मालक पे। वैसे तो मुझे 35 साल हो गए, 35 साल की सर्विस है इसी यानी कि कारोबार में। हाँ, सेक्टर में। अच्छा, जो मालक हमारा है वो झूठ पे झूठ बोली जा रहा है और कह रहा है 4 साल हमें पावरलूम लगाए हुए हैं, और 4 साल नहीं, और लूम पावरलूम उन्होंने नवी 0 मीटर लगाई है और लूम के ऊपर लिखा हुआ है, मोहरें लगी हुई हैं। लूम का मॉडल है 2015। अच्छा, 2015 तो लेके इस टाइम तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। 8 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं इनके, और हमें कोई भी हुन तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, और 8 साल में 1 रुपया भी कदे उन्होंने हमें नहीं दिया कि हमें वो गमी है, खुशी है, कि बीमार है, को फौतगी हो गई है। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, बाहर से ले लो, उधर से ले लो, ये इधर से ले लो, हम नहीं दे सकते। जब वो नहीं दे सकते जहाँ काम करते हैं, हम किधर से लें? कितनी देर होगी अब दिहाड़ी नहीं लगी? दिहाड़ी नहीं लगी पिछले माह से। पिछले माह की 6 तारीख से काम बंद है। आज यानी कि 3 तारीख हो चुकी है, 27 और 28 दिन हो चुके हैं काम बंद। हमें एक दरख्वास्त दी आपने? दरख्वास्त हमने दी है, और ये भी हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा, लिहाजा हमारा जो भी सूरत हाल है वो 0 ही नज़र आ रही है, हमें एक भी पॉइंट ऊपर नज़र नहीं आ रहा, सिफर नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप कब से काम कर रहे हैं? हाँ जी, आप शकूर हाजी बावडा वाले को काम कर रहे हैं।
2015 में लूमा लगाइया है नईया सानू 7-8 साल तो हो गए होंगे काम करते। इसने 2 दिन का कह गए भी तकरीबन 20-25 दिन हो गए ने ना सानू को खर्चा दे रहा ना ये काम चला रहा, सिर्फ आओ जी जाओ जी, सिर्फ सानू गिड़े च रखे हुए थे। उस तो बाद में मैं दरखा दी है, ये भी कोई नहीं बात सुन रहा। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕਰ 5-7 ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਲੂਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਕੋਲ ਕੰਮ। ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 4 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ पे ਮਕਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੂਮਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਕੱਢੋ ਜੀ, 1 ਦਿਨ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਮੰਗੋ ਹੈ नहीं जी, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी मौजूद हैं हमारे साथ, लतीफ़ साहब। बाबा जी आप कैसे देखते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट के हम बाहर मौजूद हैं? मेरे आने का मकसद ये था कि यहाँ मज़दूर अमूमन अपनी शिकायत लेके आए रहते हैं। हमने आपसे दरख्वास्त की कि आप हमें यहाँ वक्त दे दें। लोग बड़े तंग हैं इस वक्त, जो मालिकान हैं उनके पास बहुत सारे उज़र मौजूद हैं और वो शायद जायज़ भी होंगे मौसमी मुश्किलात की वजह से, लेकिन जो मज़दूर है वो ये कह रहा है मुझे बता ही दें ताकि मैं इस आस के ऊपर यहाँ न रहूँ, मैं किसी और तरफ चले जाऊँ। क्या कहेंगे हालात वाक़यात क्या हैं? और यहाँ बैठे अफसरान जो हैं वो यहाँ में, आपने पहले भी एक जुमला बोला मुझे, बिल्डिंग ऑफ द रिकॉर्ड आपने बोला कि बिल्डिंग बनाते नज़र आ रहे हैं और कुछ नहीं होता नज़र आ रहा। तो क्या इनका काम यही है कि यहाँ बैठे आने वाला जो मज़दूर है वो बेरोज़गार है, या तो फिर इन लोगों को दिहाड़ियों पर रख लें, चलें LDC ने शायद ये टाइलें लगाने के पैसे मिल जाएँ? बड़े अफसोस की बात है कि जी पाकिस्तान के मैनचेस्टर का जो लेबर डिपार्टमेंट है वो लेबर कवानीन पर अमल दरामद कराने में तो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। तो हम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये इस बिल्डिंग बनाने के लिए बजट दिया। तो वहाँ पे आज हम लेबर डिपार्टमेंट का जो अमला है मुंशी और ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। लेबर की जो शिकायत हैं वो दूर नहीं हो रही। मेरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि जिस तरह आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का विज़िट कर रहे हैं, स्कूलों का विज़िट कर रहे हैं, कभी इस लेबर डिपार्टमेंट का भी आके विज़िट करें, जो कि लाखों मेहनत कशों के नाम पर यहाँ पे 72 अफराद की मौज जफर फौज पाली हुई है। सैकड़ों दरखास्तें हमारी पड़ी हुई हैं, लेकिन रोज़ाना लालीपाप दे। अगर किसी फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री बंद करनी है तो वो लेबर कोर्ट से इजाज़त ले और मजदूरों को फारग करे उसके वाजिबात देकर, लेकिन ना किसी को वाजिबात मिल रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, हम अपनी दरखास्तें देते हैं लेकिन लेबर डिपार्टमेंट टच से मास नहीं हो रहा है। यहाँ का जो डायरेक्टर लेबर वेस्ट है वो चाइल्ड लेबर के नाम पर अपने बंदों को भेजकर अपनी मंथली तो इकट्ठी कर रहा है, भत्ता तो इकट्ठा कर रहा है जी जनाब। वो मोटरसाइकिल ठीक मरम्मत करने वालों को तंग किया जा रहा है, बाकियों को तंग किया जा रहा है चाइल्ड लेबर। लेकिन बाबा जी इस वक्त पहले ये आपकी बात में कट कर रहा हूँ, मैं इससे पहले देखा था कि मज़दूर और ख़ास तौर पर जो चाइल्ड लेबर फैसलाबाद में बड़ी कम हो गई थी, लेकिन इस वक्त आम नज़र आ रही है। लोग क्या करें, लोग महंगाई के पीछे, बिल्कुल गलत चीज़ है, लेकिन लोग कहते हैं जी अब क्या करें, बच्चों को ना भेजें, कहीं थोड़ी सी मजदूरी लगती है, हम तो खुद भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं ताकि घर का राशन चल जाए। जी रियासत की जिम्मेदारी है। आम बिजली का बिल नहीं हम अदा कर सकते, मजदूर के पास तो बिल अदा करने के पैसे नहीं है। बिजली का बिल, वासा का बिल, गैस का बिल, बाकी जो मोबाइल आपने जेब में रखा उसका बिल, खाने पीने की तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे मजदूर का कोई पुरसानी हाल नहीं। अभी मोहसिन नकवी साहब ने 19 सितंबर को 32,000 का ऐलान किया है। बड़े गारमेंट्स के अदारों में अमल दरामद कराना इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसी शहर के अंदर एक बड़ा अदारा तौसीफ एंटरप्राइजेज के नाम से 22,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है, और वहाँ पे जो मजदूरों ने हकूक़ की बात की तो उनको फैक्ट्री से निकाल दिया गया। 32 एप्लीकेशन इस लेबर डायरेक्टर के पास पड़ी हुई हैं, लेकिन ये मसूफ यहाँ से उठकर जाकर मसला हल नहीं करना, क्योंकि इनको चैम्बर में बुलाया जाता है, वहाँ पर बड़े शान शौकत से जाते हैं, लेकिन किसी मजदूर का मसला हल कराना हो तो डायरेक्टर लेबर जो वेस्ट है उसके पास टाइम ही नहीं है, उसको 6 अजला दिए हुए हैं। लेकिन ये भी सच्ची बात है क्या, जो डायरेक्टर लेबर या लेबर डिपार्टमेंट के अमला है इनको गेटों से अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं होती, इनको गेटों पे खड़े रखा जाता है। ये बड़ी ज्यादती इनके साथ भी नहीं, इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होती। इन्होंने मोहरें लगानी होती हैं, इन्होंने ठप्पे लगाने होते हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने GSP प्लस का स्टेटस दिया है। इनको अंदर दफ्तर में बिठाया जाता है, बिल्कुल बात गलत है कि इनको अंदर नहीं जाने दिया। जब उनका मकसद है, जब इनका मकसद पूरा होना था, ये गाड़ियों में आ रहे हैं, इनका मकसद इन्होंने ठप्पे लगाना, तो ये अंदर बैठ कर ठप्पे लगा के आते हैं। जब उनका ऑडिट होता है तो इनकी वजह से होना होता है ना, कि उसमें दिखाया जाता है जी हम लेबर कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे लेबर कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता है। ना किसी भट्ठे पर लेबर डिपार्टमेंट ने अमल दरामद कराया, ना किसी पावरलूम फैक्ट्री में, और सिर्फ चंद एक बड़े अदारों ने, गारमेंट्स ने, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने, जिस तरह ज़िया अलमदार साहब हैं, अपना इंटरलूब है,
कैलाश फैक्ट्री ने किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन बाकी जगह पे अमल दरामद कराना इनकी जिम्मेदारी है। ये तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का मैनचेस्टर पावर लूम इंडस्ट्री है जो कि इंडस्ट्री का कब्रस्तान बन चुकी है। 80% इंडस्ट्री बंद है, गैर कानूनी तालाबंदी की जा रही है, लेकिन मजदूरों का कोई पुरसानी हाल नहीं। इसका जिम्मेदार लेबर डिपार्टमेंट है। लेबर डिपार्टमेंट है मेरे ख्याल में। इसके लेबर डिपार्टमेंट के साथ साथ हमें ये भी इधर, मैं तो प्रोग्राम के तवस्सुत से एक दरख्वास्त करूँगा, जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं GSP प्लस स्टेटस हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए। अब तो हमें GCC स्टेटस भी मिल गया है, यानी कि जितने भी GCC कंट्रीज़ हैं 6, उनके भी 7 ममालिक के अंदर हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो उन ममालिक के जो अफसरान हैं, उहदेदारान यहाँ मौजूद हैं, उनके सफारतकार मौजूद हैं, उनको भी चाहिए कि इन चीज़ों को ख़ुद भी कैटेगोरिकली चेक करें, क्योंकि एक्सपोर्टर्स जो ख़ुद माल इन्हें गाहकी करते हैं वो अपनी गाय बगाए छापे मार के चेक करते हैं, लेकिन इनको चेक एंड बैलेंस खुद भी रखना चाहिए, ताकि आया अगर एक डिपार्टमेंट अपना किरदार अदा नहीं कर रहा तो फिर मज़दूर जो ख़ास तौर पर जिसकी वजह से जो ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर सब कुछ पूरी दुनिया में कमाया जा रहा है, उनको भी इंसाफ मिल सके। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पावरलूम सेक्टर के जब बात करें पावरलूम सेक्टर के मसाइल के हवाले से, तो जब मालकान की बात करें, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, तो वहाँ मज़दूर हमारे साथ थे, तो हम मालकान की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर अगर मज़दूर है तो साथ मालकान मौजूद हैं। मालकान का मौक़िफ़ है कि महंगी बिजली जो है उनको इस वक्त खाए हुए है, यूनिट्स बंद कर रही है, जबकि मज़दूर जाके लेबर डिपार्टमेंट के बाद धरना और एहतजाज रोज़ के कर रही है कि यूनिट्स चलवाए जाएँ या नोटिस दिया जाए या बताया जाए, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी का एक तूफ़ान बरपा है। सबसे पहले हमारे साथ टेक्सटाइल ऑनर मौजूद है, वहीद खालिद रामे साहब है। मैं इनसे पहले बात कर लेता हूँ मानी साहब से, फिर उसके बाद रामे साहब की तरफ बढ़ूँगा। अच्छा, आप अभी कुछ देर पहले हमें ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ चीज़ें बता रहे थे, ज़रा नाज़रीन के सामने रखते हैं कि इस वक्त मालकान के लिए चीज़ें चलानी मुश्किल क्यों है, क्योंकि मज़दूर बेरोज़गारी का रोना रो रहा है। वो मालिक की संजीदगी समझ रहा है कि इस वक्त मालिक बड़ी मुश्किल में है, लेकिन वो कह रहा है जी हमारा भी चूल्हा नहीं चल रहा, पूरे शहर में एक अनादगी का समा है, जराइम बढ़ा है, यहाँ सेक्टर सबसे बड़ा गुलामाबाद है। ऐसे लगता है कि यहाँ आवाज़ें कान पड़ी आवाज़ नहीं सुना देती थी। अगर मैं 2 मिनट के लिए खामोश हूँ तो मुझे ये बताना आसान होगा कि कितने यूनिट्स चल रहे हैं। सब तो ज़्यादा साड़ा मेन मसला बिजली का वा। पहले बिजली यूनिट साड़ा 22 रुपये, हूँ इस वक्त 60 रुपये यूनिट सानू आ रहा वा, जिसकी वजह नाल इंडस्ट्री चलानी बहुत मुश्किल है। उस तो बाद साड़ा दूसरा मतालवा यह ओवर बिलिंग है, साड़ी यूनिट साढ़े चलते कोई नहीं। उस तो बाद सानू ओवर बिलिंग कर रहे हैं, कोई जो यूनिट सड़िया भी कोई नहीं। 20-20 हज़ार यूनिट बिल बना के भेजन दे है, असं जमा नहीं करा सकते। अगर SDO को लैके जाने बिल, SDO कहता यार मैं बेबस हाँ। अच्छा, ओवर बिलिंग कैसे की जा रही है, ताकि आप अभी कुछ बता रहे हो ज़रा तफसील से, ताकि अगर फेस्को हुकाम भी देख रहे हैं, चेयरमैन फेस्को, CEO फेस्को, तो हम उनसे मुताबा करेंगे, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। जो मतहत अमला अच्छा कारकर्दगी दिखाने के एवज मालकान के ऊपर वजन डाल रहा है, वो कर क्या रहा है? उन्होंने इस तरह डाले फैक्ट्री की बंद। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ यूनिट ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੇ, ਸਾਡੇ यूनिट ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ यूनिट ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ यूनिट ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। अच्छा, गवर्नमेंट को ये दिखा रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल सही चल रही है। हाँ जी, क्योंकि इंडस्ट्री इस टाइम तकरीबन 100-5% चल रही है, जो हालात आ, यानी कि 95% तक बंद है। हमें 95% बंद है। तो इस वक्त मार्केट के साथ लड़ाइयाँ क्या मालकान की चल रही हैं? लड़ाइयाँ हाल ही कोई नहीं माल बेचन था इस टाइम। ये मतलब कास्ट है 110 रुपये, बाजार 90 रुपये रेट है। यानी कि जो पहले उठा लिया या पहले ऑर्डर आ चुके हैं, तो अब जो रेट है वो 10-15, बल्कि 10 माल भी वापस आ रहे हैं, वो भी वापस आ रहे हैं। वो भी वापस आ रहे हैं। वजूहात क्या हैं? वजूहात ये है, जो भी मरदा लूम वाला मरदा वा, लूम वाला माल जो वेचदा ना 110 रुपये, मंडी डेगी पे 10 रुपये, वो ना मेन रंगाई च फाल्ट कट देंगे जी, थोड़ा माल सही नहीं है, अपना माल चक लो। अच्छे दिन हो तो सारे नकाश चल जाते हैं, बुरे दिन हो तो छोटा से छोटा। अगर यही माल 110 115 चल जाए ना, कोई चीज़ वापस नहीं देनी। एक 10 लाख 100 का आए उन्हें सारे माल जगह उल्टों रंगाई भी सानू पाते फिर। अच्छा, कि वो भी आप भी करवा आपने डाई भी हमने देनी है। रामे साहब मौजूद हैं, कौंसिल पावर लूम्स के चेयरमैन हैं। वही खालिद रामे साहब, कैसे देखते हैं? बड़ी मुश्किलात आती हैं, सब कुछ आता है, आपके ट्वीट्स मुझे फिर वो याद आते हैं कि अभी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई, चंद साल भी नहीं बल्कि कपल ऑफ ईयर्स की ये दूरी का वक्त है जब ये एक ट्वीट होता था कि यहाँ मज़दूर नहीं मिल रहा। इसी सेक्टर में जहाँ आज खड़े हैं वहाँ मज़दूर मिल रहा है, बल्कि मज़दूर की वाफर टीमें मौजूद हैं, लेकिन लगाने वाले कोई नहीं। अब तो मज़दूर देख रहे हैं मुतबादल कोई मज़दूरी कर लें, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तारीख़ का बदतरीन सनती बहरान है पाकिस्तान के अंदर, और पावर लूम्स के अलावा जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंतहाई मुश्किल हालात में है, क्योंकि सारी महंगी की बिजली जो है वो आपके सारे का सारा खून निचोड़ चुकी है। जब आपने 1 मार्च को ज़ीरो रेटिंग ख़त्म की, उसके बाद आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंडस्ट्री मुतासर हुई,
लोकल पावरलूम हो, फाउंड्री हो, कोई भी इंडस्ट्री है वो चल ही नहीं सकती थी। उसका नतीजा ये निकला है कि आप देख लें गुलाम अहमदाबाद जो है ये 40,000 से ज़ायद लूम्स का ये एरिया पाकिस्तान भर में सबसे बड़ा ये एक वीविंग सेक्टर का क्लस्टर था, लेकिन आज इस एरिया के अंदर हर दूसरी फैक्ट्री बंद है और जो चल रही है वो भी तकरीबन 50 से 55% कैपेसिटी पे चल रही है। वर्कर्स बेचारे बेरोज़गार हैं, वो अपनी तरफ से लेबर डिपार्टमेंट में जाके वो शोर डाल रहे हैं कि फैक्ट्रियां बंद है वो चलाएं। बिल्कुल, हम अभी इंटरव्यू लेके यही मैं मामला देख रहा था कि मज़दूर जो हैं वो लेबर डिपार्टमेंट के बाहर बैठे हुए हैं और बारहा यही मुतालबा करी जा रहे हैं जी फैक्ट्रियाँ चलवाई जाएँ या लेबर कोर्ट के ज़रिए नोटिस भेजे जाएँ। अब मालिकान तो ये देख रहे हैं कि अदाद शुमार के अंदर पूरे ही कहाँ से करना है पैसे एकदम से। वो ख़ुद मज़दूरों ने बताया 13 लाख वाला बिल 34 लाख आ गया, तो मालिकान तो हमें मिल ही नहीं रहे। वो पहले 2 दिन का कह के फैक्ट्रियाँ बंद की हैं, अब वो कह रहे हैं जी हम फैक्ट्री चला ही नहीं सकते। देखिए हुकूमत क्या, जब यतीम कोई बंदा हो जाता है ना, उसके बाप का साया सर से उठ जाता है तो यतीम हो जाता है, तो उसके बाद वो दुनिया की ठोकरों के ऊपर आ जाता है। तो यही इंडस्ट्री का हाल हुआ है कि कोई बंदा इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही सूबाई हुकूमत ना ही हमारी फेडरल हुकूमत। तो सूबाई जो महकमे हैं वो भी हमें बेइंतहा परेशान कर रहे हैं, फेडरल महकमे FBR है इनकी तरफ से भी नोटिस आ रहे हैं। तो हुकूमत कम से कम ये जुल्म तो रोक सकती थी ना, लेकिन वो भी करप्शन का बदार। आज कोई यहाँ के ऊपर लेबर डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर आता है, वो 2-2 हज़ार रुपये हर फैक्ट्री से इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो कहता है जी रजिस्ट्रेशन कराएं, आपकी आधी लुम्बे क्यों बंद हैं, वर्कर हमारे पास बैठे, वो फेक चला एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, हमने देखा रामेश साहब जब मुश्किल हालात आते हैं, जैसे कोविड आया तो बैरून ममालिक के अंदर जिसका कारोबार ठप हो रहा था वहाँ बेल आउट पैकेजेस आए। ये यहाँ कोई ऐसा पैकेज नहीं आता जहाँ इस वक्त पावरलूम जो एक बड़ा सहारा थी जिसने 21 अरब डॉलर की बरामदात करके दी इस टेक्सटाइल सेक्टर ने गुज़िश्ता माली साल के अंदर, इस माली साल के अंदर जो 19 अरब डॉलर की बरामदात कर रही है, 17 से 18-19 की दरमियान कर रही है बरामदात, उस सेक्टर को बेल आउट पैकेज 2-3 अरब का दे दिया जाए कि यार ये कमाते भी तो इतना है, अगर कुछ दे भी दें तो चलो मुल्क को तो बचा लेगा। 60% से ज़ायद बरामदात का हिस्सा सिर्फ ये सेक्टर संभाले हुए है। नहीं देखिए, वो यहाँ पे हमारा इख्तलाफ है कि जो बेल आउट पैकेज है ना, वो भी पाकिस्तान के चंद बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो बहुत लार्ज स्केल में वही ले जाते हैं। कोविड के अंदर जो भी उन्होंने 0% के ऊपर या 3% के ऊपर उन्होंने तनख्वाहों के इस तरह के पैकेज दिए, अरबों रुपयों के, सैकड़ों अरबों रुपयों के, वो ये सारे के सारे ये जालिम लोग खा गए। मशीनरी अपग्रेडेशन के ऊपर उन्होंने जो पैकेज दिए स्टेट बैंक ने टफ के अंदर, वो भी ये जालिम लोग हैं। ये पाकिस्तान के हुक्मरान तो वो हैं, हम लोग तो सुबह निकलते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, लॉस भी करते हैं, ये हुकूमतों के लिए हम पैसे कमाते हैं। ये जो हमारे पैसे पे ऊपर गुलछड़े उड़ा रहे हैं, इन लोगों के लिए हम पैसे, हमारा मजदूर भी इन लोगों के लिए कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं। और इसके अलावा चोरी चकारी बहुत हो गई है। अब आप फेस्को को देखें कि इन्होंने जायज यूनिट डालते, ये पिछला हमारा इंडस्ट्रियल एरिया का बैच रीड हुआ है, वो सारे का सारा बैच उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने कहा इसके अंदर हेडक्वार्टर ने कि 5 लाख आप यूनिट्स ज़्यादा डाल के। अच्छा, इसका ये होगा ना जो 3-3.5 करोड़ से ज़ायद की चोरी है वो निकल गए यूनिट्स, और कुछ जो यूनिट्स अब बंद हैं वो निकल गए। तो उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, तो फैसलाबाद के अंदर ऐसे लगेगा सब कुछ ही बंद पड़ा है ये तो यूनिट्स के अंदर, और ये तो लाखों करोड़ों के यूनिट डाउन चले जाएंगे। तो फिर कुछ ना कुछ तो कर दिया उन्होंने। जो नहीं 3 करोड़ रुपए की क्या चोरी पकड़नी है, इतनी चोरी तो एक सब डिवीज़न के अंदर या एक डिवीज़न के अंदर इनका SDO या इस लेवल का अफसर जो है वो कर लेता है। ऊपर आपके BOD के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो दाम तेज़ की एक आने की वो चीज़ की माफ़ी नहीं दे रहे। पूरा फेस्को का एक हायरार्की है, वो तो हर घंटे के अंदर अपनी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो गरीब आप लोगों का खून को चूस रहे हैं। आप पूछे अपने कैमरामैन साहब से, प्रोड्यूसर साहब से, आप अपने कि आपके बिलों की क्या पोजीशन है, ये सब हमारा खून चूस रहे हैं। और ये चोरी की इंतहा यहाँ पे हो चुकी है। ये इन्होंने जाकर 5 लाख यूनिट डालने से ज़्यादा, तो जो फैक्ट्रियाँ बंद है वो हमारे से पैसे वसूल कर रहे हैं। जिस फैक्ट्री ने 20,000 यूनिट कंज्यूम किया है उसका बिल वो भेज रहे हैं 35,000 यूनिट का। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई पूछगिछ कोई नहीं है। किसी भी महकमे के अंदर चले जाएं, अवाम को उन्होंने गर्दन से दबोचा हुआ है और उसको डंडे मार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इतना बदतरीन एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जो है, खुदा का राह हम वास्ता दे रहे हैं। जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, हमारे हुक्मरान हैं, जो सामने हैं, जो दर पर्दा हैं, खुदा का वास्ता है इन लोगों को कम से कम इन दरिंदों से तो बचा लें। ये लोग दरिंदे हैं। हमारी हुकूमतों ने अगर इन दरिंदों से ना बचाया तो ये तो हमें हमारा गोश्त को नोच रहे हैं। लेबर
डिपार्टमेंट के बंदे आते हैं वो हमारा खून निचोड़ के लेके जा रहे हैं, फेस्को के बंदों ने हमारा खून निचोड़ लिया, प्रॉपर्टी टैक्स वाले बंदे आ रहे हैं वो हमारी फैक्ट्रियों को बंद कर रहे हैं, गेन टैक्स वाले, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमें थोड़ा बाज़ार के अंदर एक जान का बोरा जो है वो गारंटी के बगैर, एडवांस पेमेंट के बगैर या कैश पेमेंट के बगैर नहीं मिल रहा। जिस तरह मानुल्लाह साहब ने बताया कि वहाँ पे हमारे कपड़ा जाता है, अगर 5 रुपये मीटर मार्केट गिरती है वो वापस आ जाती है लाखों रुपए की लॉट जो है। तो किस जगह जाएंगे, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंडस्ट्री हाँ, कम अज़ कम हमें बचा के रखे। हमें कब्रों के अंदर तो डाल दिया है, हमारी कब्रों में हम ये तेज़ाब डाल रहे हैं, अल्लाह जानता है, हमारी हड्डियाँ तक निचोड़ दी इन्होंने। रामे साहब की बात आपने प्रोग्राम के आखिर में सुनी, उनका मुतालबा था कि मज़दूरों की बात जब सुनी तो मालिकान ने अपना ये मुतालबा सामने रखा है कि बिलाशुबा मुश्किल हालात हैं, हम लेबर के साथ हैं, लेबर के दर्द समझते हैं, लेकिन इस वक्त लेबर डिपार्टमेंट हो गया, फेस्को हो गया, कुछ डिपार्टमेंट सिर्फ़ और सिर्फ गैर कानूनी तरीके से जो हैं इस सेक्टर को मज़ीद जो है वो ज़ुबू हाली की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक यूनिट बंद पड़ा है, उस यूनिट के ऊपर एक्स्ट्रा यूनिट डाले जा रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ बिजली आ रही है। वो मालिक क्या करता है, वो उसका बिजली का बिल अदा तो नहीं करता, लेकिन अपने घर के कुछ ना कुछ चीज़ें बेच कर उसका बिल अदा करने की कोशिश करता है। तो मज़ीद जो है वो डाउन से डाउनवर्ड होता चला जा रहा है, जिसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर बद से बदतर मुरतब हो रहे हैं। इसी के साथ न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।